Let me start the lecture. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Digitutions for providing me the opportunity to share my knowledge with all of you. Digitutions is a very reliable platform for all the CSS and PCS aspirants out there. It is very affordable and it gives you the best teaching services in the comfort of your home. So if any of you is a CSS aspirant and he or she has not taken admission yet, so I believe the admission of batch 2 in Digitutions are open. So you can contact them at the contact information given on the screen in order to take the admission. So let's start with my introduction. My name is Ujala Sharashti. I'm currently working as a lecturer in Department of Management Sciences, ISRA University. Previously, I was teaching in University of Sindh. Collectively, I have more than 3 years of teaching experience. Before that, I was working as a finance officer in one of the software houses. So I also have the experience of my field work, and I've also published one of my research paper also in economics and finance in IBA Karachi. And today again we are discussing the basic economic terminologies. So let's start our today's lecture. Before starting the lecture, I just want to clear one thing, that if you are having any question throughout the session, you just have to note down that question. At the end of every topic, I will be asking you if you have any question. We will first address those questions before moving to the next topic. So our today's lecture is basic economic terms. Now, before starting my lecture, I would like to highlight the importance of knowing economic terms for all of you, regardless of your field, regardless of the fact that whether you have this as your optional or not. Because economics is a field of study which affect every person on the globe. It affects every entity. Whether you study economics or not, you will encounter these terms in your everyday chores. For example, in our daily life we used to say पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो कर्जे पे चल रहा है, पाकिस्तान में जॉब्स हैं ही कहाँ, पाकिस्तान में तो भाई आसमानों को छू रही है. When we say these terms, we are basically not just talking about economics, but we are evaluating it, we are analyzing the economics. So long story short, every one of you, especially CSS aspirant, will encounter economic terms in your daily life, such as inflation, that is prices are at its peak, rupee is being depreciated, we are experiencing a deficit, our official reserve account is empty, or we have to borrow funds from IMF. All these things, when you hear, these are economic terms. If you don't know these terms, you won't be able to understand them. Or whenever you're reading budget, or whenever you're reading economic surveys, I hope all of you know what economic surveys are. These are the official documents released by the government. They are basically available on the website of State Bank of Pakistan. इसमें basically आपको government बताती है कि भाई within a particular fiscal year हमारी performance कैसी रही है. That performance is usually sector wise, कि हमारे industrial sector की performance कैसी रही है, हमारे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल हमारी जीडीपी कितनी रही है, हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दे बेसिकली टेल यू कि इन अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर और इन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट टाइम पीरियड हमारी इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया है, वेदर हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ की है या हमारी इकोनॉमी ने नेगेटिव ग्रोथ की है, रिसेशन में चली. So you won't be able to understand these things if you don't know economic terminologies. And most of the time, the figure they are telling are forged, they are manipulated, especially at the time of election. अब election के time के दौरान जितने भी हमारे economic surveys आते हैं, they used to have fake figures, they used to have forged figures. Now you won't be able to identify whether the figure they are telling you is forged or authentic if you don't know these economic terminologies. So after understanding today's lecture, after understanding these basic economic terminologies, you will be able to identify कि भाई जो आपको figures बताई जा रही हैं in news, in budget, and economic surveys, whether they are authentic or they are forged. So this was all about the importance of knowing economic terms for all of you. So let's start our first topic of today's. It is 5 economic indicators. अब दुनिया में किसी भी मुल्क को अगर अपनी इकोनॉमी मेजर करनी होती है कि भाई हम कैसा परफॉर्म करें, वेदर इट्स पाकिस्तान, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स यूएस, वेदर इट्स अ डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, दीज आर द सेम यूनिवर्सल मैट्रिक्स. वो अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 5 मैट्रिक्स के थ्रू ही मेजर करेंगे. 5 indicators. For example, if you want to know the performance of last 1 year, last 50 years, last
government, you will be using these 5 indicators. One of the very good example is कि in CSS exam you can get a question कि भाई perform a comparative analysis of the performance of Pakistan's economy during Nawaz government और Pakistan People's Party government. अब यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है कि भाई ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं, इन गवर्नमेंट के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है. You have to comparatively analyze it. Now every economist, every individual know कि भाई इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस हमें पता चलती है इन 5 चीज़ों से पता चलती है. These are the 5 dimensions. You cannot miss out on any one of them. Employment, interest, inflation, gross national product, gross domestic product. They collectively tell you the real figure of economy कि भाई इकोनॉमी ने हमारी कैसा परफॉर्म किया. You cannot miss out on any one of them. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ लाइन इन बिटवीन. दोनों साइड पे आप ये 5 फैक्ट्स एंड फिगर्स रखोगे कि दोनों की गवर्नमेंट में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसा रहा है, ग्रोस नेशनल कैसा रहा है, इंटरेस्ट कैसा है आपका, एम्प्लॉयमेंट. नाउ जिसकी गवर्नमेंट में जैसे फिगर है, आप फिर फर्दर यू कैन बेक these fact and figure with your information कि भाई अगर नवाज की गवर्नमेंट में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा हुई है तो व्हाई इट हैज हैपेंड. शायद उस टाइम हमने फंड ज्यादा लिए, शायद उस टाइम हमने प्रोडक्शन पे फोकस ज्यादा किया. नाउ फर्दर यू कैन बेक योर फैक्ट्स एंड फिगर्स विद योर आर्ग्यूमेंट्स. But the basic thing is whenever you're telling the economic performance, these are the 5 most important things. And in our today's lecture, we will be discussing them one by one. The first one is inflation. Now, in order to make the class a little interactive, I would like to ask all of you, what do you think inflation is? I know all of you know inflation, but I want to know how you define it in your terms. Ma'am, persistent increase in prices. Very good, exactly. Daily wages की मैंने prices जो increase हो. Prices जो increase होती हैं, बिल्कुल सही. Anyone else? मैडम जो चीज़ों की रकम बढ़ती है यानी प्राइस बढ़ती है तो इसको ही हम Price इन्फ्लेशन कहते हैं. Can anyone tell me why does it happen? क्यों होता है प्राइस बढ़ती क्यों है? Due to cost pull inflation and demand pull inflation. When a demand increase, Yes, very so good. These are inflation the two automatically will major types increase. of inflation. Yes, sir. मैडम Yes, ma'am. एक तो डिमांड जी जी बेटा. एक तो डिमांड जब चीज़ों की बढ़ती है तो उसकी वजह से वे चीज़ें महंगी होती हैं. दूसरी जब चीज़ें कम हो जाती हैं मतलब उनकी स्कैरसिटी हो जाती है तब भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं. ये दोनों चीज़ें इन्फ्लेशन स्कार्सिटी होती है, सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस ऑब्वियसली उसकी बढ़ जाती है. दैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ यू हैव द आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच आई एक्सपेक्टेड ऑलरेडी. Basically, inflation is, yes, it is in the rise of prices. It is when the worth, when the value of money decreases against the product and services. Now, let me give you an example. Think about the time when we were little. At that time, in 100 rupees, we could buy so many things. But आज अगर same 100 रुपये हम लेकर जाएं तो हम कितनी कम चीजें लेते हैं. Why is that? Is it because the products are not being produced in the same number? It's not so. On the contrary, production now is much more than it used to be back then. Real reason is the money is losing its worth. जो कीमत तब होती थी अब वो कीमत नहीं है. Slowly, gradually, with the passage of time, the worth of money is decreasing. आज के इस क्लास में basically what I want to tell you is कि how does money loses its worth. मुझे पता है, सबको पता है inflation क्या है. It is महंगाई. It is when prices are rising. Please mute your mic. A lot of disturbance. Kindly अपनी mic mute करते बेटा. So basically the focus of this lecture is to tell you how exactly inflation is created. Inflation हमें पता है कि महंगाई को बोलते हैं, लेकिन ये महंगाई आखिर होती कैसे? What are the root causes of this? And if you know the root causes, you can find out कि भाई how to eliminate the inflation. In order to tell you what are the root causes of inflation, first we will understand what money itself is. Money होता क्या है? As a CSS aspirant, you should know okay, what are the root causes. आखिर inflation किस चीज से create होती है? Now, in order to do so, first you have to understand what money is. Now, let me tell you what money is. Money is simply just a medium of exchange. It is just a unit of measurement. Money does not has its own worth. पैसे की अपनी कोई value नहीं है because we do not eat money, we do not wear money, we do not live in money. हम पैसे को नहीं खाते, हम पैसे को पहनते नहीं, उसमें रहते नहीं है. But we value it because it purchases, has the power to purchase goods and services. Now we actually value the goods and services that money can buy.
अब अगर पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, इट कैन नॉट परचेज मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वी विल कॉल कि मनी इज लूजिंग इट्स वर्थ, वी विल कॉल इट इन्फ्लेशन. Now, how is it inflation created? Let me give you a background of the money. पहले क्या होता था, पहले ज़माने में there was no concept of currency, there was no concept of money. People used to do barter. वो क्या करते थे, मार्केट में आते थे, चीज़ें लेते थे और चीज़ों के बदले में दूसरी चीज़ें लेते थे. We call it barter system. For example, if I have wheat, I will go to the market and I need rice. मैं देखूंगी किसके पास राइस है, मैं wheat के साथ राइस एक्सचेंज करूंगी. This is called as barter system. पहले ज़माने में ऐसा होता था. बार्टर सिस्टम को देन रिप्लेस किया गोल्ड करेंसी ने. आफ्टर बार्टर सिस्टम गोल्ड करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ गोल्ड इज अ वेरी वैल्यूएबल करेंसी. Even if it is not used as a gold coin, it still has some worth. It is still a valuable. But afterwards, after some period of time, जब गोल्ड को पेपर मनी ने रिप्लेस किया, it created a problem. अब एक मार्केट में प्रॉब्लम हुई कि भाई because paper is a very worthless thing. If we are allowing paper to be replaced in place of the gold, तो लोग तो जितने चाहे प्रिंट करेंगे, गवर्नमेंट जितनी चाहे प्रिंट करेगी पैसे. तो how to solve this problem? तो उन्होंने क्या किया, the central body that was governing at that time, it created a rule. उन्होंने ये रूल क्रिएट किया कि भाई हर कंट्री उतने ही पैसे प्रिंट कर सकता है जितने उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान की जितनी लैंड है, जितनी गोल्ड रिजर्व्स है, उसके बाद जितनी करेंसी है, जितने वैल्यूएबल्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उन सब की एक अमाउंट आप निकालोगे, जितनी वो अमाउंट बन रही है आप उतना ही पैसा प्रिंट कर सकते हो, उससे ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट प्रिंट मोर देन दैट, बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन कि भाई पैसों को हम खाते नहीं है. पैसों का सिर्फ एक काम है चीजें परचेज करना. अगर आपकी मार्केट में चीजें इतनी है ही नहीं, आप पैसे ज्यादा करोगे तो उन चीजों की वर्थ एज कम्पेयर टू मनी बढ़ जाएगी. दिस वाज व्हाट द रेशियो वाज. अब क्या हुआ, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम पीपल स्टार्टेड इग्नोरिंग दिस रूल. गवर्नमेंट स्टार्टेड इग्नोरिंग दिस रूल. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिंटिंग मोर मनी देन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. दिस actually gave birth to the problem of inflation. This created inflation क्योंकि we have to follow the rule कि भाई हमारी इकोनॉमी में जितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उतने ही हम पैसे प्रिंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. अगर उससे ज्यादा करेंगे it is the actual thing which will create inflation. Let me tell you by an example. एक इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं. एक इकोनॉमी में हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं 4 एप्पल. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल. अगर एक इकोनॉमी में सिर्फ 4 एप्पल हैं और हमने पैसे प्रिंट किए हैं 100, so if we want to find out the price per apple, we will divide 100 by 4. अब पर एप्पल प्राइस हमारी आ गई 25 रुपीज. फेयर इनफ, जितने हमारे पास पैसे हैं, हमने प्रोडक्ट्स हैं, हमने उतने ही पैसे प्रिंट किए. So the per apple price became 25 rupees. Afterwards, what happened in the next year? सिर्फ 3 apples produce हुए, but money is same. हमने money this is available to us. What happens now is if we divide 100 by 3, now the price of the apple is rising. This is what we call inflation. प्राइस बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स कम है, हमने पैसे ज्यादा प्रिंट किए हैं. क्योंकि पैसों का कम प्रोडक्ट्स परचेज करना है तो हम उसी से डिवाइड करेंगे, जो हमारी अमाउंट आएगी दैट विल बी इट्स प्राइस. अब हमारी प्राइस बढ़ गई. ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर, अब हमारे पास 5 एप्पल आ गए, ठीक है, इकोनॉमी में, लेकिन हमने प्रिंट ज्यादा पैसे नहीं किए. नाउ व्हाट विल हैपन, द प्राइस ऑफ एप्पल विल गो डाउन. पहले हमारा एप्पल था, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 3 एप्पल्स, हमारी अमाउंट सेम रही है, तो द प्राइस पर एप्पल इज 25 रुपीज. Afterwards, it is increasing if we are keeping more money as compared to the products and services available. उसके बाद क्या हो रहा है, अगर 5 हमारे एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एंड मनी remains same, the quantity of money remains same, so the price per product is decreasing. कहने का मकसद ये है कि हमारे पैसों की क्वांटिटी एक इकोनॉमी में उतनी ही होनी चाहिए जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं. अगर हम उससे ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगी. लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इग्नोरिंग दिस रूल, एंड वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट इज जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे ने क्या किया 2007 में, इट स्टार्टेड प्रिंटिंग सो मच मनी. अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट द की टू प्रोड्यूस मोर, द की इज टू प्रोड्यूस मोर एंड प्रिंट लेस. अगर आप इन्फ्लेशन को फाइट करना चाह रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू प्रोड्यूस मोर एंड यू प्रिंट लेस. आप उतना ही प्रिंट करो या उससे कम प्रिंट करो जितने आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, क्योंकि पैसे का काम जस्ट प्रोडक्ट्स को परचेज करना है.
if it is not able to purchase the product, it has no worth. For example, अगर गवर्नमेंट आज अनाउंस कर दे कि जो करंटली करेंसी सर्कुलेशन है तो हम कैंसिल कर देते हैं, नई करेंसी इशू करते हैं, तो will you have any use of this piece of paper we call money? We won't use it as a tissue paper. हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे, उसका कोई यूज ही नहीं है apart from buying product. So if it does not have the products and service in the market to buy, it has no use. There is no point printing the money. ठीक है जी. अब इस फिनोमेना जिम्बाब्वे ने इग्नोर किया इन 2007 में जिम्बाब्वे हैड अ फिस्कल डेफिसिट, तो उसको मीट करने के लिए उसने क्या किया, उसने प्रिंट करना शुरू कर दिया पैसा. When we were little, we had this question in mind that why don't we print money? We don't print money because of this problem. I hope picture is visible to all of you. बेटा पिक्चर सबको नजर आ रही है? Yes, yes. Okay. Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे 2007 में एक फिस्कल डेफिसिट हुआ था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया भाई मैं IMF से बोरो करूं, मैं अपने कंट्री का कर्जा बढ़ाऊं, उससे बेहतर है मैं पैसे प्रिंट कर देता. So Zimbabwe started printing the money. This is what was the consequence of the printing more money. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, what happened was at that time in 2007, अगर किसी बच्चे को bread purchase करनी होती है, it was supposed to bring a lot of bundle of money in order to buy just bread. कहने का मकसद ये है कि if you don't have products and service in your economy, you cannot print more money, because money is just a medium of exchange in order to buy goods and services. Now you don't have goods and services in your economy, but you're printing more and more money. This is what it's creating problem. Now the two major points that we discussed is, number one is what is inflation. We know what is inflation. It is when money is losing its or price is increasing as compared to the goods and services. Second one is what is causing the inflation. Inflation कैसे create होती है, जब आप economy में production नहीं करते, उसके बजाय आप क्या करते हो, पैसे print करना start करते हो. This is what creates inflation. Inflation is a rise in price level relative to available goods, resulting in a substantial continuing drop purchasing power in an economy over a period of time. Now, how can government control the inflation? अगर हमारी government की बात की जाओ कि वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, इन लॉन्ग टर्म द मोस्ट जेन्युइन वे, द बेस्ट वे टू fight inflation is by producing more and more goods and printing less money. The first is most effective way is by increasing GDP, that is producing more. Second one is having the right quantity of currency. आप currency उतनी ही print करें जितने आपके पास market products and services available. This is the long term and the genuine solution. Short term solution क्या है? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि आप इकोनॉमी से पैसे वापस ले लें. यूजुअली एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमारे पॉलिटिशियंस के इलेक्शन के टाइम पे उनको एक फेक फिगर देनी होती है कि भाई हमने इतना इन्फ्लेशन रेट मेंटेन किया है, हमारे टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ही कम है. उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, वो पुल बैक कर देते हैं मनी फ्रॉम इकोनॉमी. हाउ डू दे डू इट? दे बेसिकली गिव एन इंटरेस्ट रेट. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो दूसरे कंट्रीज में या दूसरी जगह पे, तो आपको इंटरेस्ट रेट उस टाइम मिल रहा है 7%. ओके, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, एट द टाइम अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7%, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न मिलेगा 7%. हमारी स्टेट बैंक क्या करेगी, 9% का रिटर्न ऑफर कर देगी कि जो भी हमारे पास इन्वेस्ट करेगा उसको हम 9% का रिटर्न देंगे. अब इससे क्या होगा, एवरीबडी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इनटू स्टेट बैंक. अब इकोनॉमी से पैसा पुल होके स्टेट बैंक की तरफ चला जाएगा. This will create a deficit of circulating currency in an economy. अब हमारे पास अगर printed amount economy में कम होगा और हमारे पास product ज़्यादा होंगे तो हमारा inflation rate automatically reduce हो जाएगा. But this is a fake figure. This is a forced figure. Usually every government do it at the time of election in order to be re-elected. So this is a short term solution. लेकिन अगर genuine एक आप fight करना चाह रहे हो inflation को, तो the best way to do is by producing more product and printing less money. Beta, our topic of inflation is complete here. So if you have any question, you can ask. Otherwise, we can move to the next topic. मैम शॉर्ट टर्म दोबारा काइंडली एक्सप्लेन करते हैं. Okay, if you don't have any question, I'm moving to the next topic. मैम प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आपने बताया. मैम would you revise the short term again? Okay. बेटा इन्फ्लेशन को हमने फाइट करना होता है ना, इन्फ्लेशन का रेट हमें कम करना होता है. इन्फ्लेशन होती है महंगाई. तो शॉर्ट टर्म में अगर आप फॉर एग्जांपल 2-3 मंथ में आप चाह रहे हो स्टेबल रेट हमारा आ जाए इन्फ्लेशन का, यूजुअली पॉलिटिशियंस यूज
दिस के अगर उनकी इलेक्शन होनी है 2-3 महीने में और वो चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट कम आ जाए ताकि आवाम को ये लगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारी गवर्नमेंट के टाइम पे इन्फ्लेशन रेट हमारा स्टेबल रहा है, तो उसके लिए लॉजिक हमें पता है कि जब भी प्रिंटेड मनी कम होती है इकोनॉमी में प्रोडक्ट से, तो हमारी इन्फ्लेशन कम होती है। अगर प्रिंटेड मनी ज़्यादा होता है तो हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। तो अब वो जो प्रिंटेड मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने इतने सारा प्रिंट कर दिया, उसको वापस लाने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक इंटरेस्ट रेट कर देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मार्केट में तो यू आर रिसीविंग 7% प्रॉफिट। अगर स्टेट बैंक में करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट 9%। अगर गवर्नमेंट की जो बैंक है उसमें इन्वेस्ट करोगे तो 9% प्रॉफिट मिलेगा। अब ऑब्वियसली दे आर गिविंग यू 2% मोर, तो एवरीबॉडी स्टार्ट गिविंग देयर मनी टू स्टेट बैंक। अब इकोनॉमी से जो प्रिंटेड मनी था वो इन्वेस्ट हो रहा है स्टेट बैंक में। क्यों? लेट मी टेल यू, स्टेट बैंक का जो अमाउंट होता है स्टेट बैंक के पास, वो हमारा इकोनॉमी में काउंट नहीं होता। तो अब स्टेट बैंक में जब हमने इन्वेस्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी से वो मनी, वो अमाउंट खत्म हो। अब वो जब अमाउंट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो डाउन हो गया, कम हो गया, एंड इट विल गिव यू अ वेरी स्टेबल फिगर। बट दिस इज अ शॉर्ट टर्म एंड आर्टिफिशियल फिगर व्हिच यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ। मैडम मेरा सवाल, जी 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 मैडम अगर रिसोर्सेज तो सेम ही होते हैं ना सारे के सारे स्टेट्स के, तो वो प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? Exactly, this is the main issue. We have so many resources. Pakistan is a very strategic geographic location. We have a seaport. We have so many resources, but we do not produce. हम उसमें production नहीं करते. Production is done by local small and medium enterprises. That is why more and more countries are moving towards entrepreneurship कि वो लोग अपनी businesses खोलें, अपनी production करें। प्रोडक्शन और कोई नहीं करेगा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगी, इट विल बी अवर पब्लिक। अगर आप जाके मोर एंड मोर जॉब की जगह बिजनेस की तरफ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, तभी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होगी। रिसोर्सेज तो हमारे पास है, वी जस्ट हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, वी हैव टू कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच वी कैन सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। मैडम इसका असर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन Can I ask a question, ma'am? Please, excuse me. जी बेटा, please ask your question one by My one. question is that to you. My question is that to you, how we can control the inflation in our Pakistan? Of course, nowadays the inflation is just increasing day by day, day by day. The people, they are just sinking in the inflation. So what we can do? How can we overcome from the inflation? So please tell me the solution. Of course, we have not any kind of solution to overcome and to check out the very easily inflation. So please. Okay, I noted your question. Your question is how can we fight inflation? Basically, जैसे कि मैंने आपको बताया कि inflation fight सिर्फ एक सिंपल तरीके से हो सकती है when we produce more and more products. हमारी कंट्री में जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी और हमारी प्रिंटिंग लेस, we don't print more money but we produce more, तो हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे, हमारे पास इनकम आएगी. This will fight inflation. This is the most effective way of fighting inflation. This is the only way to fight inflation. लॉन्ग टर्म में अगर आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाह रहे हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप एक रेट दिखाना चाह रहे हो लोगों के कि भाई हमारा अभी इन्फ्लेशन रेट काफी स्टेबल है, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म इज टू पुल बैक मनी फ्रॉम द इकोनॉमी व्हिच आई डिस्कस्ड ऑलरेडी. मैडम हम ज्यादा से ज्यादा जो मनी है वो प्रिंट करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्शन नहीं है वो खैर हम दूसरे मुल्कों से जो उनकी प्रोडक्शन है वो हम खरीद करेंगे, तो फिर हमें कोई नुकसान तो नहीं आएगा ना? ये मेरा क्वेश्चन है. बेटा नुकसान आएगा ना, क्योंकि दूसरे मुल्कों से परचेज करने का मतलब है आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे. whenever you demand their currency and you supply your currency, you know the law of economics, when there is increased supply, price decreases. अब आप क्या कर रहे हो, when you order, for example अगर आप दूसरे मुल्कों से प्रोडक्ट ले रहे हो, let's suppose अमेरिका से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो फर्स्ट यू विल नीड देयर करेंसी बिकॉज यू विल बी पेइंग देम इन डॉलर्स, यू वोंट बी पेइंग देम इन रुपीस. अब आप क्या करें, उनके प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए उनकी करेंसी की जरूरत है आपको, उनकी करेंसी की डिमांड करोगे, अपनी करेंसी की सप्लाई करोगे. दिस इज द रीजन व्हाई आवर रुपी इज डेप्रिशिएटेड. आवर करंट डॉलर रेट इज 168 रुपीज. दैट मीन्स हम $1 को परचेज करने के लिए, एक यूनिट डॉलर का परचेज करने के लिए हम अपने 168 यूनिट्स दे रहे हैं. क्यों? बिकॉज आवर करेंसी इज डेप्रिशिएटेड, आवर करेंसी इज मोर इन सप्लाई, दैट इज उसकी प्राइस कम हो गई. तो importing more is a terrible way. When you are importing more, that means you're not only producing your own need but you are importing from other countries.
आप उनकी करेंसी को स्टेबल करे हो, क्योंकि उनकी करेंसी की आप डिमांड करे हो तो उनकी प्राइस बढ़ जाएगी. दिस इज व्हाई डॉलर इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि डॉलर के प्रोडक्ट्स की सारी दुनिया में डिमांड है. We have Microsoft, that is of USA. We have Apple, that is of USA. Amazon, Walmart. We have so many other products. Starbucks हो गया, हमारा KFC हो गया. All these products belong to US. पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट की डिमांड है. That is why dollar is up till now, from last decades, most stable currency in the world. I hope I have answered the question. Yes, madam. Yes, I understand. Thank you. Okay, let's move to the next topic. If you have any further question, please note them down. At the end of the session, I will be answering all of your questions. Don't worry. Yes, ma'am. Yes. Okay, our next topic is exchange rate. I hope I'm clear about the inflation. अब हमारा next topic है exchange rate. Exchange rate is the rate at which one currency will be exchanged for another. It is also regarded as the value of one country's currency in relation to another. अब हमारा एक्सचेंज रेट बेसिकली एक रेट होता है कि हम दूसरी कंट्री की करेंसी कितने में बाय करते हैं, और एक्सचेंज रेट हमारा डिफरेंट होता है इन एवरी करेंसी. डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू करेंसीज. अब यहाँ पे देखिए मेंशन है हमारा एक्सचेंज रेट विद यूएस डॉलर. If we want to buy $1, you can see we will buy it in 168.58 Pakistani rupees. This is the exchange rate between dollar and Pakistan. हर कंट्री का पाकिस्तानी रुपी के साथ अलग एक्सचेंज रेट होगा. एक्सचेंज रेट इज सिंपल कितने पैसों में दूसरे कंट्री की करेंसी बाय कर सकते हो. Units of your currency you have to give in order to buy 1 unit of other currency. यहाँ पे in the picture we have an example of US dollar against Japanese yen. के 1 US dollar can buy 100 Japanese yen. ठीक है जी. This is the exchange rate between Japanese yen, Japan and USA. And this right here is the exchange rate between Pakistan and USA. ठीक है जी. तो इसी तरह से एक्सचेंज रेट ऑफ एवरी करेंसी इज डिफरेंट. इट इज डिपेंडेंट ऑन सम टर्म्स. अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट बेसिकली बनता कैसे एंड व्हाई इट इज सो कि हमारा एक्सचेंज रेट इतना ज्यादा है विद यूएसए एंड विद जापान. यहाँ पे देखिए यू कैन सी दीज आर द एक्सचेंज रेट्स ऑफ पाकिस्तानी करेंसी. पाकिस्तान को अगर एक यूएस डॉलर परचेज करना है तो इट 168.3. इफ इट हैज टू बाय 1 euro, exchange rate is 198 Pakistani rupees. If it has to buy 1 Great Britain pound, it can buy it in 221. UAE dirham अगर उसको लेना है तो 46 rupees. These are the exchange rate. अब हर country का exchange rate different क्यों है? Because exchange rate between countries depend on the demand and supply of the currency. US का exchange rate बहुत ज़्यादा है, सबसे high. Why is that? Because we demand more of their currency and we supply more of our currency. हम उनकी currency की बहुत ज़्यादा demand करते हैं अपनी currency के exchange में, इसी वजह से हमने उनकी currency की price increase कर दी है. We have an example right here. Exchange rate depends on demand and supply of the currency between two countries. अब दो countries के बीच में जो exchange होगा वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा. डिमांड एंड सप्लाई पे कैसे डिपेंड करेगा? फर्स्ट वन इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज. सेकंड वन इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अब उन दोनों कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस जितने अच्छे होंगे उतना ही वो रेट स्टेबल आपका होता है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. यूजुअली दोज कंट्रीज हु हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि वो कंट्रीज आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्सेस, विदाउट एनी कस्टम्स, विदाउट एनी टैरिफ्स. दिस एग्रीमेंट इज इफेक्टिव इन यूरोपियन यूनियन. आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हैं. नाउ आफ्टर द ब्रिटिश एग्जिट, ब्रिटिश ने उनको एग्जिट कर लिया, लीव कर लिया. उसके बाद जो कंट्रीज रहते हैं उनमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. अकॉर्डिंग टू दैट जितने भी वो कंट्रीज हैं वो आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी टैक्सेस, विदाउट गिविंग एनी कस्टम्स. एंड इफ दे वांट टू ट्रेवल टू ईच वन अनदर कंट्री दे डू नॉट नीड एनी वीजा. अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत होती है. बट दीज कंट्रीज हैव freed these trade agreements, freed these restrictions in order to increase the trade. इन चीज़ों से आपका trade boost होता है. And then there is how. अब मैं आपको बताऊंगी बेसिकली हमारा और US डॉलर का रेट इतना ज़्यादा क्यों है. Why do we have to give 168 units of our currency in order to buy just 1 unit of their currency? How does it happen? If the rate between US and Pakistan is more, it means we are demanding more US currency that is buying. अब यहाँ पे देखें कुछ एग्जाम्पल है इनके प्रोडक्ट्स के. दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड सो मेनी मोर. प्रॉक्टर एंड गैम्बल इटसेल्फ इज मोर देन 50 ब्रांड्स दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ. तो अब इतने सारे प्रोडक्ट जब हम यूएस के परचेज करते हैं, उनको परचेज करने के लिए ऑब्वियसली वी विल बी नीडिंग यूएस डॉलर. यूएस डॉलर
डॉलर जब अब हमें चाहिए उसके लिए तो हम अपनी करेंसी की सप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता है कि भाई व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस। अब पहले आप फोकस करें इस लॉ पे कि भाई जब हम किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ाते हैं तो हमारी प्राइस उस चीज़ की कम हो जाती है, और हम जब डिमांड इंक्रीज करते हैं उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब जब भी हम कोई डॉलर का प्रोडक्ट, यूएस का प्रोडक्ट परचेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, उसको परचेज करने के लिए फर्स्ट वी बाय देयर करेंसी। व्हेन वी बाय देयर करेंसी वी डिमांड देयर करेंसी। लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट। When we buy their currency, we increase their demand. यूएस के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए हम उनकी करेंसी डिमांड करें। अगर एप्पल के लैपटॉप हमें लेने हैं, मोबाइल लेने हैं, तो हम उनकी करेंसी मांग रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के हमें सॉफ्टवेयर पैकेज लेने हैं, प्रॉक्टर गैम्बल अगर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, तो हम उनकी करेंसी को डिमांड करें तो उनकी प्राइस बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि करेंसी, यूएस की करेंसी आपको अपनी करेंसी में लेनी है, दैट मींस यू हैव टू सप्लाई योर करेंसी इन ऑर्डर टू बाय देयर करेंसी। नाउ वी आर सप्लाई ऑफ आवर करेंसी and supply increases or decreases the price. यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ इकोनॉमी। तो जब हम उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, this will directly decrease, depreciate the price of our currency and it will make their currency stronger. तो किसी ने बोला था कि क्यों हम प्रिंट ज़्यादा ना करें और क्यों ना हम बाहर से। So this is what happens when you import more goods. I hope I'm clear. बेटा सबको समझ में आ गया? Yes, madam. ओके बेटा, our next topic is exchange rate policies. अब हमारा जो exchange rate होता है between two countries, बेटा am I audible to you? Yes, madam, you are audible. Yes, ma'am, you are audible. Our next topic is exchange policies. अब basically क्या होता है, जो हमारा exchange rate होता है between two countries, वो हम अपने हिसाब से भी एक सेट कर सकते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिटरमाइन करे कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए डॉलर और विद अदर करेंसीज। तो उसकी 3 पॉलिसीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी कंट्री की, हमारी सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की डिटरमाइन करती है कि भाई हमारा इस करेंसी के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल डॉलर के अगेंस्ट हमारा रेट ये होगा, जापानीज येन के अगेंस्ट हमारा रेट ये होगा, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबियन रियल के अगेंस्ट हमारा रेट ये होगा। तो हमारी सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड जब करती है तो हम उस पॉलिसी को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज इट इज नॉट गिविंग यू द रियल फिगर, इट इज अ फेक फिगर, क्योंकि वो स्टेट बैंक, हमारी सेंट्रल बैंक खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट करके एक रेट फिक्स करती है। इट इज नॉट द एक्यूरेट रेट। सेकंड वन इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आपकी स्टेट बैंक जो होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करती है। जो रेट मार्केट में डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, वही रेट चलता है। अब पाकिस्तान फॉलो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, अमेरिका फॉलो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री फॉलो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बट चाइना there are very few follow fixed exchange rate. China used to follow fixed exchange rate, but now it is switched to। मैडम कंपैरेटिव स्टडी में यूएसए या जो भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो अमीर तरीन मुल्क हैं, तो दूसरों की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो इतना सारा इन्फ्लेशन क्यों है इनमें? आप ये बोल रहे हो कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा फर्क है, इज दैट राइट? यस मैडम, उनके एक्सचेंज भी ज्यादा है। चाइना जैसे वो सबसे ज्यादा एक्सचेंज करता है, लेकिन फिर भी it's not just about top economies. They are supposed to be top growing economies. There are multiple factors that are considered before making someone a permanent member. उसकी काफी सारी चीजें देखी जाती हैं भाई। One of the very important thing nowadays is nuclear proliferation. कि if a country is nuclear power but it is having nuclear, it is controlling. But madam, they have a large diplomatic relations, and there's a huge amount of exchange rate with respect to the other states. But in fact of it, America is superpower in economy while others are not, especially in case of China. China is exporting and importing a lot of goods, but it has not in such a range of economy and having no even in comparison to the American's currency.
जो आपने क्वेश्चन किया कि क्योंकि चाइना इतनी सारी प्रोडक्शन भी कर रहा है, चाइना की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, स्टिल व्हाई इज नॉट ऑन द लीडिंग मार्केट, यूएस स्टिल क्यों है लीड पे, दिस इज योर क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, द वेरी आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये इसी फिनोमेना पे बेस्ड करता है कि आखिर चाइना इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के बावजूद टॉप पे क्यों नहीं है, या इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इतना मार्केट को लीड कैसे कराए, यूएस को बीट कैसे कराए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमेनन। आई वुड सजेस्ट यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आई विल रिपीट इट। इज दैट ओके? ओके मैडम। जी जी बोले। मैम चाइना की वैल्यू जो है वो, सॉरी करेंसी जो है वो इतनी डेप्रिसिएट है, लेकिन वो फिर भी मार्केट कैप्चर कर रहा है और सेकंड पे आफ्टर यूएस, तो इसकी क्या रीजन है? your voice is not clear actually, can you just wait for जी जी। चाइना जो है उसकी वैल्यू बहुत डेप्रिसिएट है एज कंपेयर टू यूएस और अदर कंट्रीज। चाइना की करेंसी डेप्रिशिएट है नहीं, चाइना डेलिबरेटली डेप्रिशिएट करता है अपनी करेंसी। आगे की स्लाइड में हम ये भी पढ़ेंगे चाइना आखिर ऐसा क्यों करता है, व्हाट बेनिफिट चाइना कुड गेट इफ इट्स डेप्रिशिएटिंग इट्स करेंसी। So I would suggest you wait for a moment. All the questions regarding the Chinese economy and the Chinese currency will be answered in the next topic. हम ये वाला topic just finish कर लें, ठीक है? Note down your question. अगर उस slide के बाद भी answer नहीं हो रहा कीजिएगा। Okay बेटा, so I hope I'm clear. I hope these 3 points are clear कि हमारी exchange rate policies क्या होती है। Exchange rate policies simply हमारी जो central government है वो intervene करती है into the international market। अगर वो खुद जाके अपना एक फिक्स करती है exchange rate कि भाई हमारे पाकिस्तान का ये exchange rate होगा, तो हम उसको बोलेंगे fixed exchange rate। अगर वो बिल्कुल भी intervene नहीं करती, if our central bank is leaving it entirely on the demand supply on the market, we will call it floating exchange rate, and the most suitable exchange rate is floating exchange rate, क्योंकि ये actual figure बताता है, ये actually बताता है कि एक currency अगर उसका particular exchange rate है तो वो strong है या weak है। Let me give you one of the example. If there are 2 students, one of the student is having the grade, B grade with the marks of 78, लेकिन उसने वो जो मार्क्स लिए वो खुद से लिए, अपनी मेहनत से लिए। एक स्टूडेंट आ रहा है उसकी 90 मार्क्स है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल सिफारिश से वो मार्क्स लेके आया है। तो इफ यू हैड टू हायर, व्हिच वन विल यू हायर? ऑब्वियसली यू विल सिलेक्ट द वन विद द बी ग्रेड, इवन उसकी मार्क्स कम है, लेकिन आपको पता है कि एटलीस्ट उसके जो मार्क्स है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। तो हमारे जो 3 एक्सचेंज रेट पॉलिसीज है उसमें मोस्ट प्रेफर्ड पॉलिसी जो होती है दैट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बिकॉज इट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, इट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी। ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना फॉलो पेग्ड और मैनेज एक्सचेंज रेट, वो खुद अपना एक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है, जब जितना उसके फायदे का होता है तब वो वैसा रेट बताता है। जब उसको लगता है कि अगर मैं अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करूंगा तब फायदा होगा तो वो डेप्रिशिएट कर देता है, अगर उसको एप्रिसिएशन से फायदा है तो वो करेंसी का अपने का रेट बढ़ा देता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज चाइना डू इट। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा। मैम many economists are criticizing about that पाकिस्तान जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो सूट नहीं करता उसे, क्योंकि वो एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है। Can you please repeat your question? मैम many economists are criticizing about that पाकिस्तान जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सूट नहीं करता, क्योंकि वो एक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नहीं है लाइक चाइना या कुछ यूएस की तरह। Yes, Pakistan is not an exporting country. We have some export in the textile and other sectors, but floating exchange rate is the most suitable policy because otherwise your rate will be artificial. आपका rate artificial होगा. Already we don't get much investment in our country. अगर हम उसके बाद भी हम अपनी floating पे move कर जाते हैं, हम अपना fixed rate करते हैं, तो हमारी जितनी भी investment आती है वो भी नहीं आएगी। चाइना को सूट करता है पैक्ड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं, पाकिस्तान के पास तो एक्सपोर्ट भी नहीं है। वो अगर करेंसी को डेप्रिशिएट करेगा, वो फिक्स्ड फॉलो करेगा, तो उसको उस पे एडवांटेज कोई नहीं, डिसएडवांटेज हो जाएगा। दैट इज द रीजन पाकिस्तान के लिए मोस्ट प्रेफर्ड जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही है। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay बेटा, now I would appreciate if you let me finish all the topics. जितने भी आपको questions है just note them down. मैं end में रुकूंगी, आपके सारे questions के आंसर देकर फिर ही जाऊँ, ठीक है जी?
Okay, our next topic is currency depreciation. Basically, the paper money that we use today is called fiat money. Why is it called fiat money? Because it is the government issued currency that is not backed by the physical commodity, but the stability of the issuing government. हम प्रिंट करते हैं, उसकी कोई बेकिंग नहीं होती कि हमने जितनी करेंसी इशू की उतने हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं. On the contrary, it is issued by the government. तो government की जो reputation होती है, it has a great impact on the currency. Since the government stability has an impact on investment, demand, and political change, so political change will affect the currency value. However, there are a number of reasons that can contribute. Let me give you one example. जब when अब हमारी जो recent election हुई थी उसमें जब इमरान खान re-elect हुआ elected हुआ था तो अचानक से डॉलर का रेट कम हो गया था, पाकिस्तान का करेंसी का रेट बढ़ गया था. Why did it happen? Because of this very reason. क्योंकि हमारी जो करेंसी होती है वो गवर्नमेंट इशू करती है, तो गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी करेंसी पे. When Imran Khan was elected, it was considered as an ominous thing कि भाई क्योंकि पाकिस्तान में मे भी चेंज आ जाए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज आए, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई नहीं मे बी इंक्रीज, सो व्हाई डोंट वी इन्वेस्ट इन दिस करेंसी नाउ. इस वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गई थी एंड हमारी करेंसी की प्राइस बढ़ गई थी. बिकॉज इट वॉज बेयरली अ डे कि करेंसी का रेट हमारी करेंसी का बढ़ गया. तो सो एक दिन इमरान खान ने ऐसा कोई खास काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई. इट वॉज मेयरली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल चेंज. मैम अभी तो उसका बड़ा लो हो गया पाकिस्तानी रुपीस अगेंस्ट अब डॉलर. हमारा लो हो गया क्योंकि अगर इट इज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं डॉलर को, इस वजह से हम रुपी का रेट बढ़ गया था, इंक्रीज. चले जी, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंसी डेप्रिसिएशन. एग्जैक्टली कैसे करेंसी डेप्रिशिएट होती है? करेंसी डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अब आपको पता है फिक्स्ड और मैनेज्ड में तो वो खुद करेंसी का रेट डिटरमाइन करते हैं, तो इट डज नॉट डेप्रिशिएट, इट इज अ फोर्स्ड रेट, वो खुद बताते हैं. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्योंकि यू अलाउ द मार्केट टू डिटरमाइन योर एक्सचेंज रेट, तो अब यहाँ पे अगर करेंसी की वैल्यू कम होती है. ऑलरेडी मेंशन्ड व्हेन वी डिमांड मोर ऑफ द गुड्स, अगर किसी भी कंट्री की गुड्स हम ज्यादा डिमांड करेंगे, उस कंट्री के प्रोडक्ट के गुड्स को लेने के लिए उनकी करेंसी हमें परचेज करनी पड़ेगी. वी विल डिमांड देयर करेंसी, इट विल इंक्रीज देयर प्राइस. यहाँ पे लास्ट पॉइंट में देखिए, when demand increases, price increases. In order to buy a particular currency, demand their currency, so hence we increase their price, and we in order to buy their currency हमें अपनी करेंसी देनी पड़ेगी. $1 बाय करने के लिए हमें अपने 168.8 पाकिस्तानी रुपी देने पड़ेंगे. तो इतनी ज्यादा अपनी करेंसी की जब हम सप्लाई करेंगे तो इट विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ अवर करेंसी. चलें जी, नाउ we are discussing why is China depreciating its currency. One of the very unanswered questions शुरू में मैंने आपको बताया था कि भाई चाइना deliberately अपनी करेंसी को depreciate करता है. Why does it happen? Now every product that we use in our daily life, China creates its cheaper alternative and sweep away the domestic product. Our domestic product Q Mobile, we had Q Mobile in Pakistan. It had considerable number of sales, but afterwards Oppo Mobile came in the market and took away our product. This is what China do in every country in the world. अब China और US का जो trade war चल रहा है since many years, since 2008, इसी बात पे चल रहा है कि भाई US में बहुत सारे products हैं, बहुत सारे products बन रहे हैं. Like Apple belong to US, Microsoft belong to US, Procter and Gamble, Walmart, Amazon, Google, Facebook, Starbucks, Nike, so many more. All of these brands belong to US, but despite that, US is not able to take advantage of that because China is doing the entire manufacturing of all of these products. जितने भी मैंने brands के नाम यहाँ पे mention किए, ये सारे belong तो US में करते हैं, लेकिन इनकी manufacturing होती है China में. China is doing its manufacturing. Now, if you will look at your phones, अगर iPhone को भी आप देखेंगे, iPhone is a product of US, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई होगी, that manufacturing is done in China. How does China do it? China basically क्या करता है, पहले इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग US में ही होती थी, लेकिन China gave them an option कि भाई जितने में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे हम 50% कम प्राइस पे मैन्युफैक्चर करके देंगे product. Now obviously for every business, cost reduction is a major strategy to increase the profit. सारे businesses ने ये deal accept कर दी, and now
all of these brands that I mentioned over here, that is Nike, Microsoft, Apple, इन सारे brands की manufacturing जो होती है वो चाइना में होती है क्योंकि China is doing cheaper manufacturing. Now the real question is how is China able to do it? China आखिर किस तरह से इतनी सारी manufacturing करता है at a very cheap price? The answer to that is China is considered as the biggest exploiter of human rights. China अपने prisoners से, अपने जो mental asylum में लोग होते हैं उन सब से काम कराता है at a very fewer wage. कम पैसों में उनसे काम करा के मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करता है. अब इफ़ यू डू सम मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. वहाँ पे यू हैव टू मेंटेन अ मिनिमम वेज, वहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड द हेल्थ एंड सैनिटेशन टू योर एम्प्लॉय. इफ यू आर फायरिंग एन एम्प्लॉय यू हैव टू गिव देम सेवरेंस पे. चाइना में ऐसे कोई भी लॉज फॉलो नहीं किए जाते. चाइना में वहाँ पे प्रिजनर से, आम लोगों से मैन्युफैक्चरिंग कराई जाती है एट अ वेरी मिनिमम, बहुत ही कम वेज रेट उनको दिया जाता है. ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं. लेबर लॉज वहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते. चाइल्ड लेबर कराई जाती है इन ऑर्डर टू जस्ट क्रिएट द प्रोडक्ट एट अ वेरी चीपर कॉस्ट. यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी इन विच चाइना इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. आई होप इट्स विजिबल. दुनिया में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसकी 28.4% प्रोडक्शन चाइना में होती है. इट इज़ ऑफ ऑल द कंट्रीज, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसकी 28.4% प्रोडक्शन चाइना में होती है. हाउ डज चाइना how is China able to pull it off? China basically is one of the biggest exploiter of human rights. UN में भी ये कंसिडर किया जाता है. बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन यूएस का जो मार्केट है वो डाउन जा रहा है. यूएस के ये जो सारे बिजनेसेस, इसमें जितना भी प्रॉफिट आ रहा है मेजॉरिटी ऑफ इट इज गोइंग इनटू द पॉकेट ऑफ चाइना. मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर गोइंग टू चाइना. बेसिकली व्हाट हैपेंड, दिस इज द रीजन ऑफ द वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना. इस वजह से आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूएस ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है. व्हाई डज इट लीव? क्योंकि वो समझ रहा है कि चाइना को वो अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं, एंड विच इज ट्रू. चाइना इज नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द ह्यूमन राइट्स. चाइना इज नॉट fulfilling any of the laws. One of the very important law is anti-dumping policies. Anti-dumping policies basically एक law है हमारा कि आप कभी भी किसी भी मार्केट में जाके उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिट करके उससे कम प्राइस में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते. वी ऑल नो कि चाइना के हमारे पास कितने चीपर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. चाइना के फोन्स हमारे पास कितने सस्ते सस्ते फोन्स होते हैं. बाय लॉ, बाय रूल, इट इज़ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल कि आप कभी भी किसी भी डोमेस्टिक मार्केट में जाके इतनी कम प्राइस में सेल नहीं कर सकती, विच विल कॉज देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू बी स्वेप्ट अवे फ्रॉम द मार्केट. अब ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो बनी हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन चाइना उनको फॉलो नहीं करता. Because of this very reason, US has left the World Trade Organization. ठीक है जी. China's economy depends significantly on its exported goods. By devaluating its currency, the Asian giant lowered the prices of its export and gained a competitive advantage in the international market. China is long accused of keeping its currency artificially low in order to attract manufacturing jobs. Now the big question कि China आखिर अपनी currency को depreciate क्यों करता है? चाइना इस वजह से डिप्रिशिएट करता है क्योंकि उसकी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो सारी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होगी वो वहाँ पे आ जाएंगी, वो उनसे मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स कराएगा. ऑब्वियसली इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल की जो आईफोन होती है, चाइना ने उनको प्रपोजल दिया कि भाई जितने में ये आईफोन प्रोड्यूस होती है हम उससे 50% कॉस्ट पे करेंगे. दैट मीन्स 50% का कॉस्ट रिडक्शन. एवरी बिजनेस विल प्रेफर दिस प्रॉफिट, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है. Because of this very reason, China is depreciating its currency in order to make, in order to attract the manufacturing jobs. Chaliji, this was all about China. Our topic of inflation and exchange rate is completed here. Now we are moving to the second economic indicator, that is gross domestic product. Gross domestic product is basically all the products that are being produced in an economy within a specific time period. इसके चार बेसिक टेक्निकलिटीज होती हैं. इफ यू हैव अ लुक एट द डेफिनेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मॉनेटरी मेजर. अब यहाँ पे हाईलाइटेड है मॉनेटरी मेजर विच आई विल डिफाइन, ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब यहाँ पे जीडीपी हम उस फिगर को कंसिडर करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुए. नाउ फर्स्ट वन इज मॉनेटरी मेजर. जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हैं हम उनकी क्वांटिटी नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ 10 एप्पल्स आर प्रोड्यूस, वी वोंट से 10 एप्पल. पर एप्पल प्राइस इज 10 रुपीज, दैट मीन्स 100 रुपीज के.
एप्पल्स प्रोड्यूस हुए. सो मॉनेटरी मेजर मीन्स वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी कि कितनी अमाउंट के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए. वी वॉन्ट बी टॉकिंग इन द नंबर्स के 10 मशीन्स प्रोड्यूस हुए, 10 कार्स प्रोड्यूस हुए. वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू कि उनकी प्राइस कितनी है, उसमें दैट विल बी अवर GDP. सेकेंड वन इज मार्केट वैल्यू. If we produce some products in our economy, for example, if I'm producing 10 mobiles in my economy, उसको production की मुझे cost लगी है, for example, 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए, let's suppose. लेकिन मैंने मार्केट में उसको सेल किया है 2 लाख रुपए में. Now in GDP, I will not record the cost of production, but market price जिसमें मैंने उसको सेल किया है 2 लाख रुपए में मैंने उनको सेल किया है, तो हम GDP में 2 लाख रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि that is the real profit, that is the real amount that I'm earning with these products. थर्ड वन इज फाइनल गुड्स. GDP में हम कोई भी इंटरमीडिएट गुड नहीं इंक्लूड करते. फॉर एग्जांपल, अगर हम टोयोटा कोरोला की कोई कार लेते हैं ना, टोयोटा अपनी कार खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो उसमें टायर्स लगे होते हैं दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड, वो दूसरी कंपनी बनाती है, सर्विस कंपनी, सर्विस टायर्स कंपनी. अब सर्विस टायर्स कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इट इज नॉट अ फाइनल गुड बिकॉज कस्टमर कैन नॉट डायरेक्टली यूज दोज टायर्स. All those products which are not directly used by the customer will not be included in the GDP. Instead, अब वो जब टायर्स हमारी टोयोटा कंपनी परचेज करेगी, अपनी कार में लगाएगी, तब जब एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज टोयोटा करोला कार, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द GDP. और फॉर एग्जांपल, अगर हम लैपटॉप बना रहे हैं, लैपटॉप में हमारे हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उसमें इंटेल की चिप्स लगती हैं, तो उस चिप की प्राइस हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर कभी भी चिप परचेज नहीं करता. इट परचेज द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज लैपटॉप. तो हम लैपटॉप को इंक्लूड करेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. लास्ट वन इज स्पेसिफिक टाइम पीरियड. हम GDP हमेशा पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एक ईयर की फिजिकल ईयर की, हमारा फिजिकल ईयर होता है फ्रॉम June 1st to July 30th, दैट इज अवर फिजिकल ईयर. तो हम लास्ट एक फिजिकल ईयर की GDP देखेंगे या लास्ट 5 सालों की GDP देखेंगे. वी विल सिलेक्ट अ टाइम पीरियड. So gross domestic product is simply the monetary measure of market value of all the final goods and services produced in an economy. ठीक है जी. Gross domestic product is one of the most important, most common indicator used to track the health of the nation. जैसे कि मैंने आपको इन्फ्लेशन में भी बताया कि इन्फ्लेशन को फाइट कैसे कर सकते हैं. इन्फ्लेशन को फाइट कर सकते हैं when we increase the production. Because when you increase the production, आपके प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ती है, आपकी इनकम क्रिएट होती है. When you receive more income, your standard of living is improved. इसी वजह से the key to turn a poor nation into the rich nation is just GDP. It is just production. Do more and more production. अपनी local demand को भी meet करें, अपनी, और उसके अलावा exports भी करें. Try to meet your domestic demand and export your goods. By doing this, you will only fight inflation and you can turn your poor economy into the rich one. You can turn an underdeveloping country into the developing one. उसके बाद, it represents the value of all the goods and services produced over a time period within a country's border. अब यहाँ पे the term that is country's border, इसको नोट कर लें. हम next पढ़ेंगे GNP, उसमें आपको ये रिवाइज. Economists can use GDP to determine whether an economy is growing or experiencing a recession. Now, as I told you, there are 5 most important indicators which can tell if the economy is performing well or not. One of them was inflation. Second one is gross domestic product. तो GDP कितनी प्रोड्यूस हुई, अगर हम देखेंगे कि भाई पिछले साल से ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, तो हम बोलेंगे हाँ इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है. So GDP is one of very important indicator of the economic performance. Okay, second one is gross national product. This is same, it includes all the product, but इसमें एक छोटा सा फर्क है, that is GNP में हम हर वो प्रोडक्ट काउंट करते हैं जो कि पाकिस्तानी सिटीजन ने बनाया है. Focus on the word citizen because it is our national product, gross national product. वो हमारा था domestic product. Domestic का मतलब होता है हर वो प्रोडक्ट जो कि हमारे कंट्री के प्रेमिसेस में, हमारी jurisdiction में, हमारी बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुआ. Whether it is being produced by our citizens or any other. For example, CPEC के प्रोजेक्ट में अगर कोई चाइनीज लोग हैं जो कि प्रोडक्ट कर रहे हैं काम, कोई कंपनीज बना रहे हैं, तो उनकी भी हमारे GDP में काउंट होगी because it is being done within the boundaries of our nation. But in gross national product हम सिर्फ वो प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे जो कि हमारे सिटीजन्स ने किए, वो बेशक पाकिस्तान में की हो या किसी भी दुनिया के और कोने में की हो. फॉर एग्जाम्पल, Nike is a company of US, but its production is being done in China. तो वो उसकी GDP में काउंट नहीं हुआ क्योंकि वो उनके कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रही. लेकिन क्योंकि वो US के सिटीजन्स ही प्रोडक्शन करें तो उनकी GNP में काउंट होगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. तो सिंपली GNP is all the production of a country that is done by its citizens.
चलें जी, after that there is interest rate. An interest rate is the amount of interest due per period as a proportion of an amount lent, deposited or borrowed. Basically हमारा जो interest rate होता है, it is usually not the interest that is being issued by that is being given by the individual banks. It is the interest rate that is given by the State Bank of Pakistan. हर country की central bank एक rate देती है, interest rate देती है, in which all the countries or the local residents can invest. तो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी, अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट इज वेरी गुड, इट इज वेरी स्टेबल, वी कैन आइडेंटिफाई यस इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल. तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती है इकोनॉमी. द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द सेंट्रल बैंक यूजुअली इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट व्हेन इन्फ्लेशन इज प्रेडिक्टेड टू राइज अबव देयर इन्फ्लेशन टारगेट. अब अगर जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन फाइटिंग, उसमें क्या होता था, उसमें हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चाहते थे कि भाई हमारी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम आ जाए. उसकी वजह से उन्होंने क्या इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया ताकि सारे लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें, इकोनॉमी से पैसे आ जाएं स्टेट बैंक की तरफ. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन दे कैन इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. अगर इन्फ्लेशन हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई, इट इज गोइंग इनटू द नेगेटिव विच इज ऑल्सो नॉट गुड, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने रेट्स कम करेंगे. जब हमारे रेट्स कम होते हैं बोरोइंग हमारी ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, तो मैं देखूंगी कि भाई मैं वहां से पैसे लूँ जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट कम लगे. जब हम पैसे बोरो करने लगते हैं हम प्रेफर करते हैं इंटरेस्ट रेट कम हो. जब हम लैंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो. तो वेन एवर एन इकोनॉमी वांट टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, वो क्या करेगी, वो रेट कम कर देगी. पीपल विल स्टार्ट बोरोइंग मनी फ्रॉम स्टेट बैंक and it will circulate the money, it will transfer the money from state bank to the economy and hence it will stabilize the inflation. चलें जी, उसके बाद हमारा economic growth is simply the increase in GDP. हमारी as compared to last year, हमारी इस ईयर GDP जितनी बढ़ेगी हम उसको सिंपली बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई हमारी इकोनॉमी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया. यूजुअली वी कंपेयर इट बाय द लास्ट 5 years. हमारे लास्ट 5 years में हमारी GDP कितनी ग्रो की है, GDP ने कितनी ग्रोथ की. सो मेजर इट इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई किसकी गवर्नमेंट में GDP ने ज्यादा GDP हमारी ज्यादा इंक्रीज हुई है, प्रोडक्शन ज्यादा हुई है हमारी. दैट इज अवर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. Then one of the very important topic, that is balance of payment. Balance of payment basically आपको बताता है कि आपका country international forum पे कैसा perform कर रहा है. How are the business relationships of your country or the trade relationship of your country with the rest of the world. Balance of payment is simply a record. It is simply a transaction summary record between your country and the rest of the world. आपने कितनी बिजनेस, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है और आपके कंट्री में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है. ठीक है जी. इट इज सिंपली अ रिकॉर्ड कि भाई एक साल में, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की बात की जाए कि लास्ट फिस्कल ईयर में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, वो कैसे पता चलेगा. हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में हमारे सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं. Current account is first account. It includes all the imports and export. आप पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्विस भी देखेंगे, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बना होता है. करंट अकाउंट में अब क्या होगा कि हमने जितने भी इंपोर्ट किए, दैट मीन्स हमने कितनी चीजें सारी दुनिया से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज किए. ऑन द अपोजिट एक अमाउंट लिखी होगी, दैट इज एक्सपोर्ट, कि हमने दुनिया को कितना सेल किया है. नाउ द मोस्ट बेनिफिशियल फिगर इज व्हेन योर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, व्हेन यू सेल मोर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज कंपेयर्ड टू यू बाय. there have been some years in the history of Pakistan, only 2 to 3 years, in which we had a fiscal surplus. अब जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से, जब हम सेल ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू परचेजिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी विल कॉल इट सरप्लस. जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, वी विल कॉल इट अ फिस्कल सरप्लस. जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, जो कि यूजुअली होते हैं एक्सपोर्ट से, तो हम उसको बोलते हैं डेफिसिट. आई होप आई एम क्लियर. आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि करंट अकाउंट में हम बेसिकली दो चीजें कंसीडर करते हैं, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंपोर्ट इज व्हेन वी बाय फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरों से हम बाय करते हैं. एक्सपोर्ट इज व्हेन वी सेल टू देम. सो व्हेन वी sell more than we buy, we experience a surplus, fiscal surplus. Or when we buy more than we sell to them, we experience a fiscal deficit. And usually in the previous decade, we are experiencing a fiscal deficit.
It was all about the current account. अब हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई. अब हमारा जो सीपेक का प्रोजेक्ट है दैट इज कमिंग इनटू द कैपिटल अकाउंट. जी जी बेटा. मैम ये करंट अकाउंट दोबारा रिपीट कीजिएगा. ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर देती हूँ. करंट अकाउंट बेसिकली बेटा एक अकाउंट है जिसमें हमारी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना किया है, हमने कितनी एक्सपोर्ट्स किए, कितनी चीजें सेल की हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड कितनी चीजें उनसे परचेज की हैं, दैट इज इंपोर्ट. अब हम यहाँ पे सिंपली दो फिगर्स लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हमने 10 lakhs की एक्सपोर्ट्स किए, 10 lakhs के प्रोडक्ट्स हमने दुनिया में सेल किए हैं टू डिफरेंट कंट्रीज. हम वी डोंट बाइफरकेट द फिगर्स कि भाई किस कंट्री को कितनी किए, वी राइट अ टोटल फिगर कि हमने टोटल कितनी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में सेल की. हमारे पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्जिकल गुड्स आर देयर, टेक्सटाइल गुड्स आर देयर, एंड हमारा जो सी फूड है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता है. तो इन चीज़ों की हम एक्सपोर्ट काउंट करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल 2000 एंड हमारा जो लास्ट फिस्कल ईयर है दैट इज़ फ्रॉम जनवरी 1 2019 टू जून 1 2019 टू जुलाई 30 2020. ये हमारा फिस्कल ईयर. इसमें हमने टोटल कितनी चीज़ें बाहर ममालिक में सेल की हैं, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़. तो हमारी एक्सपोर्ट्स हो गई 1 लाख रुपीज़. देन देयर इज इम्पोर्ट कि हमने कितनी चीज़ें बाहर के मुल्क से परचेज की. अगर हमने इम्पोर्ट किए फॉर एग्जांपल 2 लाख, हमने एक्सपोर्ट की है चीज़ें 1 लाख की और हमने इम्पोर्ट किए 2 लाख की. नाउ इफ वी विल डिडक्ट 2 लाख फ्रॉम 1 लाख, हमने एक्सपोर्ट में से हमेशा इम्पोर्ट माइनस करते हैं, वी विल गेट अ of -1 lakh rupees. That means -1 lakh is our fiscal deficit. हमारा trade deficit है ये हमारा. Trade deficit is when you export less than you import more. ठीक है, करते हो एक्सपोर्ट कम करते हो तो आप ट्रेड डेफिसिट एक्सपीरियंस करते हो. That is this figure. I hope I answered your question. Yes ma'am, yes ma'am. Thank you ma'am. Moving to the next topic, that is capital account. अब हम करंट अकाउंट में भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ही लिखते हैं, लेकिन जस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की. हमारे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई, और हमारे जो हम स्टॉक्स परचेज करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं दूसरे कंट्रीज के, वो जो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी कैपिटल अकाउंट में आ जाती है. अब हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लाइक इन पाकिस्तान द रीसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. दिस इज अ मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब ये हमारी आएगी कैपिटल अकाउंट में. यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जी जी मैम, सीपेक का तो ये डेट कंसीडर किया जाता है ना, ये तो हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, कितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. बेसिकली मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ कि भाई जब दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैपिटल अकाउंट में कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ जैसे कि हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते थे, कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज 10 years, 10 years में पाकिस्तान में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, कितने कंट्रीज ने पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, एनी एरिया, इन रोड कंस्ट्रक्शन, इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन प्लांट फिक्सिंग, जितनी भी चीजें कितनी इन्वेस्टमेंट की एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान डिड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में आता है, लेकिन हमारा कैपिटल अकाउंट जो होता है इट यूज्ड टू बी इन द सरप्लस, क्योंकि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, और डेवलपिंग इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द लॉन्ग टर्म. लाइक सीपेक इज देयर, एक फ्रांस का भी हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट चल रहा है. तो all the long term projects that we are dealing with will be included in the capital account. जो भी डेफिसिट या सरप्लस होगा इन द करंट अकाउंट एंड इन द कैपिटल अकाउंट, अगर हमने दोनों में सरप्लस किया है, दैट मीन्स वी हैव अर्नड मोर देन वी हैव स्पेंट, तो हम अपने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में उसको प्लस कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे. और अगर हमने डेफिसिट किया है तो हम अपने ऑफिशियल रिजर्व बोरो करके वो डेफिसिट कवर करेंगे. यूजुअली पाकिस्तान के साथ सिनेरियो ये है, अवर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज कंप्लीटली एम्प्टी. जब भी हमारा डेफिसिट होता है, अवर ओनली ऑप्शन इज टू बोरो फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे हम बोरो करते हैं. दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी बोरो फंड फ्रॉम IMF. So this was all about balance of payment. Moving to the next topic. Ma'am, please.
ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बेसिकली हमारा एक अकाउंट होता है जिसमें हम अपने सारे कंट्री के वैल्यूएबल्स लिखते हैं, हम हमारे रिजर्व्स यहाँ पे होते हैं। तो अगर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में हमने अगर प्रॉफिट किया है, दैट इज सरप्लस किया है, तो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ऐड कर देंगे। पाकिस्तान का जो होता है, अगर हमारा डेफिसिट हुआ है, यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से वो माइनस कर देते हैं, उससे हम वो कंपनसेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इट्स एम्प्टी। दैट इज द रीजन when we don't have from any amount, any currency, any valuables in our official reserve account, our next option is to borrow from IMF. तो हमारे पास यही ऑप्शन रहता है, अगर हमारे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, हमारे पास डेफिसिट आया, तो हम IMF से बोरो करके वो कंपनसेट कर देते हैं। We pay off that debt, we compensate the deficit by that. Beta, did I answer your question? Yes, ma'am. Okay, beta. Next one is purchasing power parity. Purchasing power parity is a measurement of prices in different countries that uses the prices of a specific good to compare the absolute purchasing power of the country's currency. Purchasing power, as the name suggests, it is basically कि आपकी करेंसी में क्या कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितने प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकती है. Now it differs from currency to currency. Pakistan's currency is very weak currency, so in our currency we can buy very fewer goods as compared to if we have the US dollars. This is determined basically by the strength of the currency. अगर हमारे purchasing power, for example, if our Pakistan's currency was appreciated against the US dollar, तो हमारा purchasing power against US dollar increase हो जाता, हमारा purchasing power ज़्यादा होता. लेकिन at this point you know that our rate, US dollar rate is 168.58. That means purchasing power of US dollar is stronger, is more as compared to the purchasing power of Pakistan's currency. Basically, the strength of currency कि आपकी currency में कितनी capability है products को purchase करने की, कितना power है. If our currency is strong, we can buy more. If our currency is weak, we can buy very less. ठीक है बेटा? Okay. Ma'am, please repeat purchasing power parity. बेटा परचेसिंग पावर सिंपली उसको हम बोलते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कि वो दूसरी करेंसी या दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके. अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो हमारी करेंसी में ये कैपेबिलिटी होगी कि वो दूसरे कंट्री की ज़्यादा करेंसी परचेज करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें पाकिस्तान करेंसी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, आवर करेंसी इज सो वीक that we have to give 168 units of our currency in order to buy just 1 unit of US dollars. This is the purchasing power of our currency कि हमें इतने सारे units अपनी currency के देते हैं तब जाके हम एक US डॉलर परचेज करते हैं. On the contrary, look at the other side of the story कि US currency इतनी strong है, उसका purchasing power strong है कि वो अपने एक unit से हमारे 168 units परचेज कर सकती है. This is purchasing power parity. It is simply the strength of your currency to buy the goods or to buy the currency of another country. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, the next बेटा सिंपली क्या होता है कि हमारी जो स्टेट बैंक होती है उसके दो काम होते हैं, दो पॉलिसीज होती हैं. वन इज फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में उसको क्या करना होता है, उसको ऑल द मेजर्स, ऑल द metrics of money, that is inflation, that is interest, that is liquidity, उन सबको उनको स्टेबल रखना होता है. It is basically the job of our central bank कि वो जितनी भी मनी की पॉलिसीज, मनी की डीलिंग है, सर्कुलेशन है, मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करे. मॉनेटरी पॉलिसी वो अपनी ऐसी बनाए कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन स्टेबल हो, इंटरेस्ट रेट हमारा अच्छा हो, मनी की डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन रहे, हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सस्टेन करे, हमारी लिक्विडिटी ज़्यादा हो, हमारे पास एक्सचेंज रेट हमारा अच्छा हो. These are all the problems, all the factors that are relating to the money. That is called as monetary policy. Monetary policy में स्टेट बैंक हमारी बेसिकली डील करती है मनी रिलेटेड फैक्टर्स. तो उसकी जॉब है मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से मेंटेन रखे कि हमारा इन्फ्लेशन स्टेबल रहे, हमारा इंटरेस्ट अच्छा रहे और हमारी लिक्विडिटी मेंटेन रहे, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल रहे. ठीक है जी. देन देयर इज fiscal policy is basically it is a means by which government adjusts its spending and tax
threats to monitor and influence the nation's economy. बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट बजट इन्वॉल्व होता है कि भाई हमारे कंट्री में जितना भी अमाउंट है उससे जो बजट होता है उसको किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से मेंटेन किया जाए. हमारा बजट कैसे बनता है? फ्रॉम द टैक्स. हम जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट हैज दैट पर्टिकुलर फिगर फ्रॉम विच इट क्रिएट्स अ बजट. उसको जो डील करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी सिंपली. Microeconomics. Beta, now we have covered all the topics related to the macroeconomics. Now we are moving towards the microeconomics. Microeconomics means economics within the boundaries of the country, economics at a minor scale. Now we will be focusing on the economics between business to business. अब तक हम जो economics की बात कर रहे थे, we were talking between country to country. So basic economic, उसके जो most important topic that we discuss in microeconomic is 4 basic economic assumptions. Assumptions का मतलब होता है these are the rules that all the economists agree. वो एक समझे एक कलमा है उनके लिए कि ये 4 चीजें वो समझना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए. इकोनॉमिक्स में ये 4 बेसिक assumptions होती हैं. फर्स्ट वन है सोसाइटी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, दोज आर अनलिमिटेड. वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट इज all of you want to wear the branded clothes, all of you want to study in Oxford, all of you want to travel the world. These are all your demands, these are all your wishes, these are all your wants, but you cannot get all of them. सब ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ सकते, सारे के सारे लोग दुनिया के लग्जरियस ब्रांड्स नहीं पहन सकते, सारे के सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते. रीजन बीइंग आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, दे हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड equally, तो सबका शेयर कम आ जाएगा. और if they are distributed unequally, so some will be having a good standard of living and others won't be having. So this is the first economic assumption which I agree with, most of you must be agreeing with, कि हमारे पास वाकई जो resources हैं वो बहुत ही limited हैं हमारे पास, और हमारे wants हैं, हमारी जो desires हैं वो unlimited हैं. Second one is decision made in pursuit of personal interest achieve a common interest. This is a very tricky point. Most of you must be having problem understanding it. Economics का जो father था एडम स्मिथ, उसने बेसिकली एक बात बोली थी कि जो जो डिसीजन हम अपने फायदे के लिए लेते हैं, all the decision that we take in order to give advantage to ourselves, all the decision that we make for our personal interest, they end up achieving a common interest, they end up achieving a greater good. अब दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट कि भाई जो चीज़ हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं उससे सबका भला कैसे हो रहा. लेट मी एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर माई बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ गुड फोन, आई नीड अ लग्जरियस हाउस, और आई वॉन्ट टू ट्रेवल समवेयर. इफ आई एम सेइंग दीज थिंग्स, आई एम क्रिएटिंग अ डिमांड इन एन इकोनॉमी. इफ आई एम क्रिएटिंग अ डिमांड इन एन इकोनॉमी, whenever there is demand there is supply, business will be created. For example, my demand is pizza. पिज़्ज़ा अगर मेरी डिमांड है, हमारी इकोनॉमी में काफ़ी, फॉर एग्जांपल सोसाइटी में काफ़ी लोगों की ये डिमांड है, बिजनेस क्रिएट होगा, बिजनेस क्रिएट होगा, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा. तो ये जो सारी डिमांड हम करते हैं फॉर आवर पर्सनल डिजायर, दे एंड अप अचीविंग अ कॉमन गोल. दिस असम्पशन. अगर आप फॉर एग्जांपल वेलफेयर के लिए किसी को अलाउंसेस देते हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे दिए, किसी को चैरिटी दे दी, they are good thing, but they don't achieve the long term goal. If you're giving charity to someone, you're making that person dependent on you. But if you're giving job to a person, that person will be contributing in the economy. हमारी इकोनॉमी का जो पाई है, जो प्रोडक्शन होगी वो भी बढ़ेगी, वो अपने लिए कुछ काम करके कमा के भी लाएगा. तो better than giving someone charity is giving someone job, giving someone an opportunity to work. This is the second economic assumption. Third one is every decision has an opportunity cost. जो भी आप लाइफ में डिसीजन लेते हो एक opportunity cost होती है. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ इफ आई एम टीचिंग यू, ये जो 2 आवर्स है मेरे पास, 2 आवर्स में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम गिविंग अप ऑन सो मेनी अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम में मैं कोई और अपना काम कर लेती, मैं कोई अपनी पढ़ाई कर लेती, मैं वॉक कर लेती, मैं कहीं और पे लेक्चर दे देती. So that is my opportunity cost. I'm giving up all those things in order to just give you lecture.
Or for example, after intermediate, you were supposed to select a field of bachelors. आपको इंटरेस्ट था लॉ में भी, आपको इंटरेस्ट था बीबीए में भी. अगर आपने इन दोनों में से एक अल्टरनेट सिलेक्ट किया, दूसरा अल्टरनेट जो आपका होता है, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Opportunity cost is something what you give up in order to get something else. So in economics, every decision has an opportunity cost. हर एक decision की opportunity cost होती है. Whenever you decide to do something, you are giving up on the all other things that you can do. The fourth one is people make choices to maximize marginal utility over marginal cost. लोग वही डिसीजन लेते हैं, वही चीज़ें परचेज करते हैं जिसमें उनको उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज दिस पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज इंक्रीज्ड. आप पैसे दे रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग समवेयर, यू आर वाचिंग अ मूवी, आपको लगता है कि जो 500 में मूवी में स्पेंड कर रही हूँ, तो 500 मुझे इतना बेनिफिट नहीं देंगे, उतना सेटिस्फेक्शन देंगे जितना मूवी देगी. सो नाउ आई हैव मेड अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि भाई which thing is benefiting me more, is it watching movie or having 500 rupees. सिलेक्टेड कि भाई मुझे मूवी देखने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है. सो एज पर द इकोनॉमिक्स पॉइंट, एज पर फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि सारे लोग जो होते हैं वो अपने डिसीजन इस तरह से करते हैं, वो जब देखते हैं कि उनका फायदा ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट दे आर सपोज टू पे, तभी वो कोई डिसीजन लेते हैं. Then there is scarcity. Scarcity is basically resources are limited, demands are unlimited. ऑलरेडी मैंशनड इन द फर्स्ट पॉइंट कि भाई हमारी इकोनॉमी में डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, वांट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम वो सारी डिमांड, सारे वांट्स कंप्लीट करें. हेंस वी हैव टू मेक अ डिसीजन कि किसको इतने रिसोर्सेज देने हैं. हाउ आर वी सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू द अनलिमिटेड डिमांड्स, अनलिमिटेड वांट्स. दैट इज कॉल्ड एज स्कार्सिटी. Then there is opportunity cost, already mentioned कि opportunity cost is the alternate that you give up in order to get something else. यहाँ पे लिखा है भाई opportunity cost is an economic term that refers to the value of what you have to give up in order to choose something else. In a nutshell, it's the value of road not taken. जो चीज़ आपने give up की, that is your opportunity cost. अगर आपने medical को छोड़ के for example engineering में गए, तो medical will forever be your opportunity cost. Then there is efficiency and equity. Efficiency is basically when you produce more. अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास previously जब economics के हमारे शुरू में जो economists होते थे, they used to believe कि जो हमारी income है वो हमें equally distribute करनी चाहिए. I think when I say this, most of you must be agreeing कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं. ऐसा क्यों है? जब एक रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दिए, why don't we distribute them equally? But after a decade, economists were able to find out कि it is the most stupidest way कि जब आप बोलें कि हम resources equally distribute करें. For example, अगर आपने ये decide कर लिया कि हम जितने भी economy में पैसे हैं, जितने भी हमारे resources हैं, सबको equally देंगे, there will be no incentive to work. जब मुझे पता है कि मैं कोई काम करूँ ना करूँ, मुझे सेम आउटपुट मिलना है, तो विल आई कंट्रीब्यूट इन एन इकोनॉमी? क्या मैं इकोनॉमी के लिए काम करूँगी? क्या मैं प्रोडक्शन के लिए काम करूँगी? इकोनॉमी में अपना शेयर देने के लिए काम करूँगी, पार्टिसिपेट करूँगी? नो, बिकॉज आई डोंट हैव एन इंसेंटिव. मुझे पता है मैं काम नहीं भी करूँगी, मुझे सेम इनकम मिल रही है, मैं करूँगी भी तो सेम मिल रही है. सो आफ्टर अ डेकेड ऑफ डिबेट, इकोनॉमिस्ट वर एबल टू फाइंड आउट कि भाई एफिशिएंसी हमारी कभी भी नहीं मिलेगी इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम इक्वली. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट द इंसेंटिव. जो जितनी मेहनत करे उसको उतना दो. इट्स नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन यू गिव जस्टिफाइबल रिटर्न. जो जितना इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करा है आप उसको उतना रिटर्न दो. दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी, दैट इज कॉल्ड एज फेयरनेस. Then there is utility. Utility is basically economic, that means total satisfaction received from consuming a goods and service. कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, that is called as your utility. Then production possibility frontier basically एक चार्ट है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव जस्ट 100 rupees and I want to do a business. For example, if I have, let's suppose 1000 rupees, तो अब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मेरे पास जो ऑप्शन है, जो मैं इस 1000 में कर सकती हूँ, या मैं इस 1000 में 5 बर्गर्स बना सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ,
और अगर मैं बर्गर की जगह स्विच करूँ, मैं आइसक्रीम पे जाऊँ, तो मैं 20 आइसक्रीम्स बना सकती हूँ। और अगर इफ आई स्विच फर्दर मोर, आई स्विच टू द कॉफी, तो मैं कितनी कॉफी बना सकती हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज सिंपली द पॉसिबिलिटी कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिटेड इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो रेफ्रिजरेटर्स बना सकते हैं तो वो 2 रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगे, अगर वो कार प्रोड्यूस करें तो वो जस्ट 1 कार प्रोड्यूस करेंगे। नाउ इट इज योर ऑप्शन, दिस इज द रियल लाइफ सिनेरियो। आपके पास हमेशा रिसोर्स लिमिटेड ही होता है, इट इज योर चॉइस कि आप उन लिमिटेड रिसोर्स में से क्या डिसीजन लेते हो, कौन सी चीज प्रोड्यूस करते हो। देन देयर इज मोनोपोली। Monopoly is when one particular entity, one particular business has the advantage of being the sole supplier. For example, किसी एक बिजनेस के पास राइट है, अथॉरिटी है फ्रॉम द गवर्नमेंट के वो ही एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल इज वापडा। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वापडा ही प्रोड्यूस कर सकती है, अगर वापडा के साथ बना के नहीं रखेंगे, वी डोंट हैव एन अल्टरनेट। This is what monopoly is. Monopoly is when you give authority to just one business कि वो उस चीज को सेल करे। Monopoly is not good for the economy क्योंकि it gives an unfair advantage to the business कि बिजनेस को पता है कि भाई इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वापडा के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो जितनी भी प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी देगा हम देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम रह तो नहीं सकते, we will end up accepting whatever the price वापडा is giving us. Then there is duopoly. Duo का मतलब होता है two. Duopoly is a situation that is created into the market when there are only 2 leading firms, 2 horses in the race. पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है करीम एंड ऊबर। जो हमारी टैक्सी कंपनीज होती हैं, कैब की चीजें, वो हमारे पास लीडिंग जस्ट 2 हैं, दैट इज करीम एंड ऊबर। So duopoly is simply a situation in the market when there are just 2 horses in the race, when there are just 2 leading firms dominating the market. Then there is perfect competition. Perfect competition is the best market scenario. Perfect competition में there are plenty of sellers, plenty of buyers. सबको पता होता है कि भाई कितने हमारे पास seller हैं। अगर for example if I'm going into the market, मुझे पता है कि there are so many seller of a particular product, तो मुझे पता है एक अगर मुझे ज्यादा महंगा देगा मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी। That is the option what I have. And so in perfect competition, every buyer and every seller is informed कि भाई there are multiple options. That is why you cannot create a price of your own. आपको जो मार्केट में होती है, यूजुअली एग्रीकल्चर में हमारे जो होती हैं दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। वेजिटेबल्स हमारी जो होती हैं उसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है क्योंकि हम है कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ टोमेटो, वी नो। अगर एक बंदा नहीं है कि इट डज नॉट हैव अ मोनोपोली कि टोमेटोज जस्ट एक जगह से हमें मिल रहे हैं कि जितने में भी जो भी है हमें वहीं से ही लेना है, वरना हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इट हैज अ परफेक्ट कंपटीशन। टोमेटोज आर बीइंग सोल्ड एट एवरी कॉर्नर अराउंड द मार्केट। सबके पास है तो हमें पता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ टोमेटो। अगर हमें एक उस रेट पे नहीं देगा हम दूसरे के पास चले जाएंगे। So perfect competition is simply a situation जब सेम प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा सेलर हो, बहुत ज्यादा बायर हो। In that situation both the parties are independent कि हमारे पास अगर एक हमें ज्यादा पैसों में देगा हम दूसरे के पास चले जाएंगे। Okay, then there is okay, this was all about the microeconomics topics. So if you have any question now you may ask. Excuse me ma'am. जी जी मैम रेमिटेंसेस जो हैं वो जीएनपी में कंसीडर होंगे? जो कंसीडर होते हैं दैट इज कंसीडर इनटू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैपिटल अकाउंट। रेमिटेंसेस आर द ट्रांसफर्स जो कि हमारे रेजिडेंट पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। पर यूजुअली इन सऊदी अरेबिया से हमारा सबसे ज्यादा रेमिटेंस का जो अमाउंट वहाँ पे हमारे सिटीजन वहाँ करके हमें वो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान में, दैट इज रेमिटेंस। लेकिन मैम जीएनपी की तो डेफिनेशन भी यही होती है ना कि गुड्स आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री। जीएनपी में हमारा होता है प्रोडक्शन। अगर हमारी इनकम ट्रांसफर होती है दैट इज रेमिटेंस, दैट इज इन द कैपिटल। जीएनपी में बेसिकली फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई जो वहां पे प्रोडक्शन कर रहा है दैट इज प्रॉफिट, दैट इज नॉट रेमिटेंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब कर रहा है कहीं पे जाके किसी भी कंट्री में, यूजुअली इन सऊदी अरेबिया,
वो जो इनकम अपने घर वालों को ट्रांसफर करे, दैट इज रेमिटेंस. Okay, ma'am. What is the difference between government spending and development expenditures? And what is government spending on what? Government spending on What? what? Beta, government spending is all the amount that government is spending on particular thing. For example, हमारे infrastructure development में अगर government कोई spend कर रही है, public property में कोई government spend कर रही है, road building में कोई कर रही है, school development में कोई कर रही है, in all these things that is called as government spending. And ma'am, what is the difference between development expenditure? बेटा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अ डेवलपमेंट स्पेंडिंग. वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्पेंड करिए. अगर वो एजुकेशन में करिए, इट इज डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट. समझ रहे हो आप मेरी बात? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज सिंपली कि गवर्नमेंट कितना, व्हाई डज गवर्नमेंट स्पेंड अमाउंट, it is basically spending the amount in order to do some development. वो develop करने के लिए जो amount spend करिए, development is the cause, it is the reason why government do spending. Okay, ma'am. Thank you. Okay, beta, do you have any other question? No, ma'am. Okay, beta. Thank you very much for. मैम अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मैम कुछ जनरल क्वेश्चंस थे कि जब मैंने टॉपिक पढ़ा था ना चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर का, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे. जी पूछें. मैम एक ये कि रिजर्व करेंसी क्या होती है? बेटा रिजर्व करेंसी इज सिंपली हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है. अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में वी आर सपोज टू कीप द रिजर्व्स ऑफ डिफरेंट करेंसी. डॉलर की हमारे पास करेंसी होनी चाहिए. हमारे पास जिन कंट्री से हम ट्रेड करते हैं उनकी करेंसी हमारे पास होनी चाहिए. यूजुअली कंट्रीज यूज्ड टू हैव दिस रिजर्व, उनके पास ये होता है. लेकिन पाकिस्तान क्योंकि ऑलवेज एक्सपीरियंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इस वजह से हमारे पास वो रिजर्व नहीं होता. रिजर्व इज सिंपली अकाउंट ऑफ स्टेट बैंक जिसमें वो डिफरेंट करेंसीज की का स्टॉक रखती है. समझे? अच्छा मैम, तो ये कह सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है रिजर्व अकाउंट और रिजर्व करेंसी, दे बोथ आर सेम? रिजर्व करेंसी इज केप्ट इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. ओके मैम. और मैम ये अमेरिका जो है वो कब से मतलब कि ये ट्रेड डेफिसिट 1970s के इसका चलता आ रहा है, तो फिर भी इसके डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो वर्ल्ड वाइड फिर भी उतनी है, तो इसकी क्या रीजन है? हालांकि डॉलर इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड सिंस ऑलवेज up till now. Pound ज़्यादा expensive है, pound is more expensive, but still dollar is the most stable क्योंकि डॉलर कभी भी sharply कम नहीं होता. कभी भी वो ना ज़्यादा sharply बढ़ता है ना कम होता है, वो stable रहता है. You must know कि हम जब जितने भी accounting records बनाते हैं, financial reports बनाते हैं, या जब हम exchange rate calculate करते हैं, we always do it in terms of dollar. Why do we do it? Because we know dollar is the most stable. Stable से मुराद ये नहीं है कि it is very strong or it is very expensive. It means कि it does not depreciate very quickly. बहुत तेजी से जल्दी गिरती नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ती नहीं है. There was just one incident जब ट्विन टावर्स का इंसिडेंट हुआ था, तब हमारा जो डॉलर था वो गिरा था शार्पली. उसके अलावा कभी भी वो इतना शार्पली नहीं गिरता. When investors know कि भाई डॉलर इज अ करेंसी जो कि इतना शार्पली नहीं गिरेगी, दैट मीन्स इतना ज्यादा हमें लॉस नहीं देगी. Why people used to invest more in US dollar. समझ रहे हो मेरी बात? अब जब इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा US डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, इट विल स्टे स्टेबल. ओके. एंड मैम ये चाइना की मैंने कहीं भी पढ़ा था कि चाइना की दो करेंसीज हैं, एक युआन है और दूसरी उसका कोई रेनमिन भी समथिंग है ऑफिशियल. तो ये दो करेंसीज का क्या मतलब है? हेलो मैम. Hello, ma'am. Are you there? बेटा आवाज आ रही है मेरी?
जी मैम अब आ रही है। ओके मैम बेटा। दो currencies का मतलब पूछना था कि चाइना की 2 करेंसीज क्यों हैं? Beta, time of the question is up. Due to the shortage of time, I am ending lecture here. But if you have any queries or any problems, you can contact me through Digitutions. I will be responding from their forum. ठीक है जी. One last thing, the Digitutions second page is open. If you want to take admission in CSS, they have a very good faculty. उनके पास PCS qualified faculty है, तो आप उनसे contact कर सकते हैं. ठीक है जी. और उसके अलावा जो है उसका भी वो कोर्स करा रहे हैं. You can see the flyer on the screen. So for that you can contact them as well.